Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 of your History 8 books. And in today's lesson, you will be able to discuss about the historical significance of the Lahore Resolution. So, aaj hum Lahore Resolution, which was given in 1940. So we will be discussing that today. So the student learning outcome is that to describe the historical significance of the Lahore Resolution of 1940 in the formation of Pakistan. So ये जो करारदादे पाकिस्तान भी जिसको कहा जाता है, जो कि 1940 में पेश की गई थी, कहाँ दी गई थी, याद होगा आपको, मीनारे पाकिस्तान के मकाम पे, और इसी वजह से एज अ मॉन्यूमेंट वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान बनाया गया. तो इसकी पाकिस्तान के फॉर्मेशन में क्या जो है वो अहम किरदार इसने पेश किया, क्योंकि आप जान सकते हैं कि 1940 में ये पेश की गई थी और 1947 में पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. सो क्या इसकी अहमियत थी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली लुक एट द इंट्रोडक्शन. 23 March 1940 was the date when it was presented. Location was Lahore, which you know that near Minare Pakistan, and the key figures in this resolution was Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Significance अगर इसकी की बात की जाए, there was a turning point in the demand for a separate homeland for the Muslims. So my dear students, क्यों लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई थी? क्योंकि साइमन कमीशन जो है it got failed and Muslims and Hindus जो है they openly disagreed with each others and the demands as presented in the Nehru report and Jinnah's 14 points. So काफ़ी ज़्यादा disagreement जो है वो सामने आ रहा था. इसके अलावा 3 जो है वो round table conferences हुई and they were also there was a failure to resolve key constitutional issues between Indian leaders leading to further disillusionment. तो तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आप बनवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ना हिंदूज जो है वो एग्री कर रहे थे, ना मुसलमान एग्री कर रहे थे. सो फर्दर Congress actions after coming to power were perceived as discriminatory by the Muslims, such as declaring Hindi as the national language and restricting Muslims from their religious practices. Further, Pirpur report जो 1938 में publish हुई, उसमें भी by the Muslim League, it documented the discrimination against the Muslims in education, also in employment and religious practices, also reinforcing Muslim demand for protection of their religious rights. So उसके अलावा there was also a reorganization of the Muslim League and Jinnah's leadership. So इस वजह से जो है ये रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी. सो अगर इसके मेन फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सेपरेट होमलैंड की बात की गई मुसलमानों के लिए, उनके लिए ऑटोनमस और सॉवरेन स्टेट जो है उसकी बात की गई फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न जोन्स जहाँ जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है. एंड इट ऑल्सो एम्फेसाइज द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन रिलीजियस कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स. आप ये देखें कि ना सिर्फ ज़बान में जो है वो इख्तलाफ था, ज़बानें मुख्तलिफ थी, कल्चर मुख्तलिफ था, रिलीजन मुख्तलिफ था. तो इस वजह से ये दोनों जो हैं नेशंस एक साथ नहीं रह सकते थे. सो इसी वजह से की एम्फेसिस जो था वो यही था कि दोनों को अलहदा कर दिया जाए. फर्दर जो स्पीच कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर रेजोल्यूशन के मकाम पर दी, तो उसमें भी यही एम्फेसिस किया गया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग नेशंस हैं, दोनों के कल्चर और रिलीजन्स बिल्कुल जो है वो डिफरेंस है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट विद ईच अदर, एंड ऑल्सो देयर इज अ नीड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर मुस्लिम्स. So, what was the reactions of the Hindus for in response to the Lahore Resolution? Hindu leaders reacted with hostility for the demand of a separate state state, and also initially the British did not take the resolution seriously. So, जो हिंदूज हैं ना सिर्फ उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई कि किसी भी एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स ने भी शुरू में इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया. बट आफ्टरवर्ड्स इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है इट बिकेम अ फाउंडेशन फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो इट सेट द स्टेज फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947. एंड ऑल्सो बिकॉज ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि 23 मार्च को हर साल जो है इसको एज पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया जाता है इन द कमेमोरेशन ऑफ दिस फेमस रेजोल्यूशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका भी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम ये बात है
कि बहुत एक सीरीज ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जिसकी वजह से मुसलमान इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अब हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन अ सेम स्टेट। सो इस वजह से इन दोनों को अलहदा हो जाना चाहिए। और इसके अलावा कायद आज़म और जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उन्होंने भी किस तरीके से आवाज़ उठाई और किस तरह जद्दोजहद करके विच रिजल्टेड इनटू पाकिस्तान। और इस लाहौर रेजोल्यूशन जो है ये उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडियंस। For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, you will also complete the skill sheet by scanning the QR code skill 4.6, and there is also skill 4.7 and 4.8. ये टीचर की मर्जी है कि वो इसको होमवर्क में भी दे सकते हैं, and this can also be done in the class. And further, homework में आपने you have to write a short paragraph answering the question, why is the Lahore Resolution considered a turning point in the history of India? I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much, and Allah Hafiz.